Rahim. So today our topic is, as we already know, it is about what? Pseudo? It's about pseudo class and elements. It's pseudo classes and pseudo elements. SEUDO, huh? Hmm. Elements. Okay, when we say pseudo classes first, then we pseudo elements. Basically, they are pseudo. Pseudo means something which is false, which is not actual. Like something you have pseudopodia, and we have seen in the eighth classes and all, which have false legs, which are not actual legs. So anywhere you use the word pseudo, it means something which is virtual, which is not real. For example, we have the virtual reality, which is we are doing the meeting, but we are not actually meeting, right? So it's kind of a pseudo meeting. Similarly, we got a pseudo classes and pseudo elements, uh, and classes talk about the structure, while as the elements talk about the elements, right? So when I say pseudo classes, basically, they don't have they are pseudo classes, they don't have DOM representation. Now we have not read about the DOM, right? Representation, we don't have DOM. We will talk about DOM in detail later on in the JavaScript when we start DOM representation. In fact, we can start DOM anytime in HTML and all, but it is a JavaScript which utilizes the DOM. That's why we teach DOM usually at the time of JS. But DOM is starting from the first empty page you have. And these row classes, students, they don't have any DOM representation. There is no HTML kind of thing. You can say they are ghost, right? Booth Pret. So we are reading about today is about the Booth Pret. But I'm not expecting you to answer me what is DOM, but I will expect at least one student from you. And the name is Ifla. Yeah, Ifla should be able to tell me something about DOM at least. Is Ifla here? Yes, sir. Are you here? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Speak up. सर डॉम ये सर डॉम में ये इंटरफेस होता है प्रोग्राम्स के लिए प्रोग्रामर जो के लिए यूज करता है यस सर हम्म जो यूज करता है इसको मैनिपुलेशन के लिए स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए स्टाइल के लिए yes and और where is the copy? Basically I was teaching DOM a little bit about this is BCA 5th. I guess they are something. What are BCA 5th? No, IT 5th. Yeah. थर्ड सेमेस्टर Oh, third semester. But why is your 505 on it? It is a roll number? यस Okay. सर Yeah. This is a minor class where physics students and some other class students are there, and we're talking about DOM and its manipulations. Anyways, we will not discuss that here because that will take up the whole class, and we have to do it in detail, great detail later. Even what we had done in our IT class, more than that. So what is the DOM? Is actually the document object model, which means I don't talk right now because it will take a lot of time. I have already given one class of this in the morning, so I'm not going to discuss that right now. So because that will take up the whole the time, and we will stay without learning our pseudo classes. So I said we have a pseudo classes. Where is that? मैंने लिखा था कहीं पे. And pseudo elements, they don't have any DOM presentation. That means there is no HTML, and what is DOM and all, we'll talk it later. So what Your is, screen. I haven't shared your screen. I haven't shared a screen. That is I'm writing and I'm not sharing a screen. That's very bad. Share it. Okay, now hopefully you are having the screen. Is screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now in a pseudo classes we have something which was not there. It's like actually it's a temporary phase. It's a temporary phase. It was not there. For example, we have seen, for example, we got a button, and when you hovered the button, so normally when you had a button, you don't, the hover was not there, but you have added a class hover to it. So that hover in itself is a class which was not there before you hovered it.
So it becomes a temporary class. That's why we call it as a pseudo class. Similarly, there are pseudo elements. Okay, well, like we have before, we have after, we have many more things. Let me admit the Imran and all, right? They were not there. So what is it? We will do it and practically understand it. So in pseudo class we use the colon, in pseudo elements we use the double colon, and these guys we write after this element, any element we have here and its pseudo element here, or any element here we write its pseudo class here. Like we have the hover, we have the link, okay, we may have active, okay, we may have chucked, we have the target, we have the nth child, and there are many more. These guys we're gonna discuss today, but there are many more that you can go to the MDN and chuck all of them, right? Similarly, we have the what's called as pseudo elements. We talk about them later. First, let's talk about the pseudo classes. And we said, for example, however, we have already seen. Say, for example, I just go to the VS Code. I have created day 27. I don't know what day today is. I forgot. I just wrote 27 here. So I'm going to new once an index.html, and I got here the style.css. Now in the index.html, I kick my element to give stuff here. Now I want to have an anchor tag here. So for example, this is the, say for example, an h1 tag, and I'm saying learning pseudo classes right now. Okay, now I'm getting the anchor tag here, for example. Okay, in href I'm just putting in the root there. I don't want anything. I just say click me. Okay, now if I see this here, go live and check it out. What is it all about? It's a click me and it's blue color. So just a quick question. Yes. Is there any difference between writing just STM and HTML? But I remember back in the days, we used to just write STM. HTM, yeah. Yes. We have the old style of writing was HTM or HTML when we have the HTML4, but when you come HTML5, you just write HTML, right? Like here, we write here HTML only, doc type. Yes, there was we could have written the HTM also in the back times, but now we just write in a there is a single convention now to write HTML. But before HTML4, we could have written the HTM also. Index.htm you were saying, right? We were writing old days HTM. Yeah, right. Yeah, we were doing that before HTML5 hits, but now we have to technically write HTML. It tells us, it doesn't tell anything, but this thing tells us that is HTML5, but the doc type right now, the extension is now standard HTML. Follow that thing only. Okay, now I am saying I got the anchor tag here and say click me, and it's getting the blue link. So however, we already know that if we have, say for example, anchor tag, and I'm saying if we hover on it, now it was not, the hover was not there, right? The hover was not there, but the moment you hover it, the hover class is temporarily added. So that's why it's called a pseudo class. Now I am saying maybe the color, उस वक्त जो कलर है ना, आप इसका aqua बनाना कलर, ठीक है? So when you hover it, the color of this, it's not linked actually here. So I go here, I say link tag and CSS, it's linked now. Now if I hover it, now it's getting aqua color, right, of the hover. So it's coming, it's a pseudo class. Similarly, we have what is called as a link. I'm saying link. Link means when it is unvisited, when the link is unvisited. What will the colors? It was, the default is blue. Maybe I will say it should be the black. Okay, when it's, now it will change to black. When I go hover, it will change to, it's not changing, I don't know why. When I say hover, why is not hover changing? I don't know. Hover, it should change the hover, but it's not right now. Let me see now one more thing, what's called anchor tag. If it is visited, if it is what, because link is actually hogging up the things, that's why it's not showing, because link is making it unvisited, whether you are hover, or because you hover it or you don't hover it, at that time it's also the link. So that's why it's making black both cases, this case also this case. Now I am saying if it is
visited. If it is what? The link is visited, that means you have clicked it. Maybe you make its color to red. Okay, you make its color red. So that means when you click it, it is visited now. Because you have clicked it, it becomes the red. Okay, refresh it, it is still visited because browser knows it's visited. Maybe we have the another anchor tag which is not visited yet. I will just say no. I say control option and down arrow, and I say click me to. Now this anchor tag is not visited yet. So click me to is still red. Why is it red? I say hash click me to. This is a new line. Okay, but I have not clicked it. So why is it red again? Leave it for a while. Okay, just give it a go and refresh it because it's visited. Because when something is visited, it is say we got another anchor tag which is not visited yet. So I have made a copy paste. I don't know, it has remembered that thing only. So maybe I say it's google.com. google.com. In fact, it's http google.com, and I'm saying it is Google. Now this guy is not visited for surely, so that's why it's black. The moment you click it, okay, and it's going to the Google, you come back, now it is visited, so that becomes red. Simple as it is. And one more thing in this is active. So I say, for example, in here is I say when the anchor tag is active, that means when you are clicking it at that moment, make the color maybe something like blue or violet, blue violet. Okay, that means when you are clicking it, make it violet. See, it's making violet when you are clicking it. Now I clicked it, go there, but while you are making it active, okay, when you are making it what? Active, just at that moment, once again, why is it this coming up from here? When you click it and make it active actually, so at that moment it should change the color. Okay, bas mein aa rahi hai? So when you are making it what? Active, you are clicking it right now. I'm holding my click, that means this is active right now. At that moment, what you will do, you can change the CSS at that moment. Similarly, this thing comes with the buttons also. Maybe I have some button or I have a paragraph tag. So when you are making it active, okay, for example, I got a button. So button is say click me, I say click me button. Okay, now the button comes up with the click me. So when I click and hold, for example, that means it becomes active. So I will say it when the button is active. Anything, the paragraph is active or something is active, we can do that. Okay, maybe I say the background color at that moment, give the background color to be as something like yellow, maybe, I don't know. So when you make it, it becomes yellow. So when it is active, active means when you are selecting it. Okay, when this button is active, at that moment you're changing the color. Does it make sense what I'm doing? So this is about the some of the active classes, and then there is also, like, we have the active, we have the visited, we have the link, we have a hover. Similarly, we have chucked. We have already done the chucked. If you remember the days when we created what, where is that, where are you guys here? You know, you remember the day when we have done the, you know, that hamburger, yeah, hamburger, yeah. When we created the hamburger, at that moment we use the chucked. Okay, Yes. that day I didn't explain because that was not a CSS day to explain, but today we will give another example to make it clear. So what I am doing is chucked means that we can you know, grasp it whether it is chucked or not. I'm doing what, I just created one div here, and here I am creating couple of things. I created radio buttons maybe. Okay, so input and type is radio. Okay, I don't know why it is written. Let's say radio, radio. Okay, it will create me radio button with an ID of, say, for example, yes, and I got a label for. It should have the same ID as that of a for, and ID should match. You know, remember that the labels, to, you know, link them together so that, yeah, if you click the label, it will actually chuck the radio button. So they are linked together by the yes. Similarly, I got another input colon radio.
I'm creating two radio buttons with yes no, and I'm saying here no, for example, and this guy is yes. Okay, and here I say label, for example, again a label with the for of no, it's a yes no, and I put up here the no, right? So what I am doing is, where is the browser is here. So I am saying I got a two radio buttons with a label yes, because if I click the yes, I don't need to click the radio button itself. I am clicking the no. Okay, but both of them got selected, which shouldn't be there. Either yes should be selected or no should be selected. What should we do? If you remember, what should we do here? Because they're both getting selected. Huh? Name रखना है इनको same. Exactly. Yes, no. Very good. Shabash. I kept it deliberately empty so that I would see कि दोनों में से एक ही, लेकिन अब मुझे yes, मतलब इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है. मैं अगर yes पे ही दबाऊंगा तो वो हो जाएगा, no पे दबाऊंगा तो वो हो जाएगा ना. अब मैं ये कैसे हो गया कि no को दबाने से चेक बॉक्स जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट हो रहा है? बिकॉज द लेबल एंड द रेडियो बटन इज लिंक्ड टुगेदर, बिकॉज फॉर इसका वही है जो इसका यस है. दैट मीन्स मुझे फॉर और ये जो रेडियो बटन है ये लिंक है, ये एक ही बन गया. अब यानी कि इसको क्लिक करो या इसको क्लिक करो, एक ही बात है. लेकिन अब मुझे पकड़ना है कि अगर ये चक है, जैसे मैंने देखा था, अगर चक बॉक्स चक है तो उसके बिना पे वो काम करेंगे हम, है ना, जो हमने किया था उस वक्त रेस्पॉन्सिव बनाया था उस साइट को, हैमबर्गर में मेनू कन्वर्ट किया था. मैं इसी सूरत में मुझे यहाँ पे चक्ड देखना है. किसमें? मुझे देखना है कि चक हुआ कि नहीं. अगर चक हुआ है तो मुझे इस लेबल का जो है ना फॉन्ट मैं थोड़ा बड़ा करूंगा और कलर चेंज करूंगा, बोल्ड बनाऊंगा. ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी में सिलेक्ट करूंगा? ये डेफिनेटली होगा सूडो क्लास. चक्ड इज अ सूडो क्लास. लेकिन किसका सूडो क्लास? रेडियो बटन का. Either I could say the radio button with an ID or class and then select it with a hash or dot, or I can directly call it input. लेकिन input में मैं किसको चेक करूंगा? एट्रीब्यूट को. एट्रीब्यूट कौन सा? रेडियो बटन, क्योंकि इनपुट तो सारा टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब इनपुट में यहाँ पे रेडियो बटन है. अब ये इनपुट को कौन बता रहा है कि ये रेडियो है, कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, कि ये क्या है ना? मेरे पास यहाँ इनपुट नहीं हो सकता ऐसा. मेरे पास एक इनपुट है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी इनपुट है, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स है ना? टाइप. वेरी गुड. नाउ इस इनपुट, अगर मैंने इनपुट लिखा तो मैं रेडियो बटन की अगर बात कर रहा हूं तो मैं उसके एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, टाइप की. So how can I select the attribute? Yesterday's lecture. How can I select the attribute? I have to write that in the brackets. Square brackets. And here I am saying type equals to, for example, radio. अच्छा जी, अगर मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अगर इनपुट है और उसका टाइप रेडियो है, और अगर वो शाबाश, अगर वो चेक्ड है. वेरी गुड. अगर वो चेक्ड है, सीधी लैंग्वेज, आराम से समझो. मैं कह रहा हूं कि इनपुट, मेरे को इनपुट सिलेक्ट करना है, लेकिन कौन करना है सिलेक्ट? अब तो दूसरी बात है ना, इनपुट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. फॉर्म के ऊपर आपके बहुत सारी चीजें इनपुट हो सकती हैं. आपका रेडियो बटन हो गया, आपका चक बॉक्स हो गया, आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया, सारे के सारे इनपुट ही है ना. तो आपको कौन चाहिए? मैंने कहा जिसका बाय सब एट्रीब्यूट रेडियो होगा, लेकिन उसका जो सूडो क्लास है वो चक्ड होगा. कि अगर वो चक्ड है, यानी कि दोनों में से कौन चक्ड है? अगर मैंने इसको चेक किया तो इसका चक्ड होगा सूडो क्लास, क्योंकि इसका तो बना ही नहीं होगा नो का, क्योंकि सूडो क्लास तो होता ही नहीं है कुछ. वो तो तभी होता है जब कोई एक्शन होती है. ठीक है ना? जैसे इसका हॉवर हमने किया, अभी तक वो चीज था नहीं, अब बना. जब मैंने हॉवर किया, अब इसका एक क्लास बन गया जिसका नाम है हॉवर. अभी तक ऐसा कोई नाम का क्लास था नहीं. इसी तरीके से जो यस है, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया नो को, अब इसका चक्ड क्लास बन गया, सूडो क्लास. ठीक है, अभी तक इसको था नहीं. तो दोनों में से किसको चक्ड क्लास है वो अब ये बताएगा. अच्छा जी, उसके ऊपर क्या करना चाहते हो आप? अब हो गया, ये हो गया सिलेक्शन. ये हो गया सिलेक्शन कि अगर ये जो चेक बॉक्स है, इसको अगर आपने चेक किया तो इसका एक सूडो क्लास चक्ड होगा. ठीक है, इसके बिना पे मैं किसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूं? यस का या नो का? व्हाट इज यस एंड नो? यस एंड नो और लेबल्स. यस एंड नो और लेबल्स. अब मैं किसको करूंगा? अगर मैं लेबल लिखूंगा वो तो सबका ही हो जाएगा ना. तो अब मैं किसका करूंगा? लेकिन जो चक्ड होगा और उसकी आईडी नाम से, उसकी लेबल
यानी कि अब अगर आप यहाँ पे हम कल का एक और वो चीज कर सकते हैं, यानी कि जो ना ग्रुपिंग हमने की, उसमें हमने कहा कि टिल्डा भी हमने देखा, बहुत सारी चीजें, टिल्डा स्टार हो गया, वो सारी चीजें, और एक प्लस भी दिखा, व्हाट वाज प्लस, व्हाट वाज Plus प्लस, was next sibling. एग्जैक्टली द सिबलिंग डिसेंडेंट, जिसे हम कहते हैं सिबलिंग डिसेंडेंट, यानी कि अगर ये सिलेक्ट है, अगर ये सिलेक्ट है तो इसका नेक्स्ट कौन है, लेबल, Yes. है ना। तो अगर हमें बताना है ना, अब बताना है कौन सी लेबल, या तो हमें लेबल को, या तो हमें एक चीज करना है कि भाई साहब कि इन लेबल्स का हमें रखना है कुछ आईडी वगैरह, तो भाई ये इसका कर लेना, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, अगर मैंने क्लास रखा तो वो सारे लेबल्स हो जाएंगे, है ना, बात में आ रही है। अगर मैंने लेबल का कुछ क्लास रखा, इसका भी वो क्लास रखा, अब अगर मैं कहूंगा कि भाई इस, या मैं कहूंगा लेबल को करो कलर, अब तो ये भी लेबल है ना, तो मैं कह रहा हूं कि भाई साहब चक हो गया, या इस बात को करने से, इस बात को करने से ये हो गया कि जो बंदा चकड़ है, जो रेडियो बटन चकड़ है, चाहे अब आपका ये वाला चकड़ है या ये वाला चकड़ है, ठीक है ना, चाहे आपका ये चकड़ है या ये चकड़ है, इस पे आप क्या करना चाह रहे हो, मैं कहूंगा भाई लेबल को बना बड़ा, लेकिन कौन सी लेबल, तो वो ये भी लेबल भी, ये लेबल भी, अगर मेरे पास 50 लेबल वो सारी हो जाएंगी ना, तो या तो फिर तो मुझे आईडी देना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। अब अगर मैंने इसका आईडी दिया तो इस वक्त वो चलेगा ही नहीं जब ये वाला होगा, क्योंकि उस वक्त फिर इसको भी आईडी देना पड़ेगा, तो फिर दो कोड लिखने पड़ेंगे, यानी कि जब ये चकड़ है तो ये वाला आईडी, ये लेबल का फॉन्ट होना चाहिए, वरना ये अगर चकड़ हो गया तो इस लेबल का फॉन्ट होना चाहिए, है ना। बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ना। या अगर मैंने लेबल दिया खाली लेबल का, वो तो सब लेबल्स पे अप्लाई होगा, यानी कि जब मैंने ये चेक किया तो वो ये इस लेवल पे भी अप्लाई होगा, इस लेवल पे भी अप्लाई होगा, तो इस सूरत में मुझे यहाँ पे आराम से मुझे सिबलिंग वाला ये इस्तेमाल होगा। मैं कहूंगा भाई साहब एक काम करना, जो नेक्स्ट सिबलिंग वाला है लेबल, LABEL, उस पे काम करना, ठीक हो गया। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आपका इनपुट है रेडियो है, टाइप रेडियो है, ठीक है, हो गया रेडियो बटन अगर है, लेकिन क्या रेडियो बटन क्या, लेकिन उसका सूडो क्लास चकड़, अगर वो चकड़ है तो आप CSS लगाना किसके ऊपर, प्लस क्या बताएगा, प्लस बताएगा कि उसके बाद जिसको आपने सिलेक्ट किया उसका सिबलिंग, उसके बिल्कुल बाद जो आएगा वो वाली लेबल आप करना, उसका कलर आप करना भाई साहब चेंज, मे बी कलर रेड करेंगे उसका कलर आप, अबे यार कलर लिखना क्या हो गया इसको, कलर स्पेलिंग यही होती है कि कुछ और होती है, हाँ ये क्यों नहीं मान रहा, कलर रेड कर देना उसका, अबे रेड इसको हो क्या गया, ओके कुछ गड़बड़ है कहीं पे लगता मुझे, कलर रेड कर देना, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना, नहीं गड़बड़ किया कहीं पे, है ना, क्योंकि मान नहीं रहा ना। नहीं ठीक सर है। ऊपर स्पेस नहीं है शायद चेक के और इसके कोलन के बीच में, हाँ उससे स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है सर, कहाँ पे, मैंने किया सर, ये हाँ यहाँ पे सब में स्पेस नहीं है, प्लस में भी नहीं। नहीं क्यों नहीं स्पेस है, नहीं वो तो नहीं करेगा, प्लस वाला ठीक है, बाकी ठीक है, चलिए सर। हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे स्पेस नहीं है, राइट, हाँ उसमें हम क्या कहेंगे, कलर उसका क्या करना रेड, और उसका फॉन्ट कितना बनाना, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दो, लाइक 30 पिक्सल कर दो, ओके। यानी कि अब क्या होगा, एक सेकंड कहाँ गया, व्हेन यू चेक समथिंग, नहीं हो रहा काम, हमने कुछ गड़बड़ किया, क्या किया हमने, हम कह रहे हैं कि इनपुट अगर टाइप रेडियो है, हो रहा है ठीक है, हाँ तो यहाँ तो मुझे तो नहीं हो रहा सर, ये हो रहा है, मेरे पास भी हुआ नहीं होता का, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, इनपुट मैं कह रहा हूँ टाइप अगर रेडियो है, अगर वो चकड़ है तो उसकी लेबल पे आप कलर करना चेंज रेड, और फॉन्ट साइज करना 30 पिक्सल, लेबल ठीक लिखा मैंने LABEL, हो क्यों नहीं रहा, तो चला इसको, मेरे ख्याल से ये मैंने बैक किया ना, शायद ये सेव नहीं हो रहा, इसको एक बार फिर से करेंगे, हाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे, गो लाइव, यस वी गो लाइव, हाँ हो रहा है, असल में ये वो सेव का लाइव सर्वर का मसला था, आई सेड नो एंड इफ आई क्लिक यस, नाउ यस इज गेटिंग, सो इसने चक्र को पहचाना, ठीक है, राइट, सो इज दैट क्लियर व्हाट आई एम डूइंग। एक और चीज आता है टारगेट,
एक और चीज क्या आता है यार अच्छा मुझे वारिया शुर दरवाजा ना बंद पाया शोर सही हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं यहाँ पे उन्होंने बहुत शोर लगाया एनीवेज अब मैं चाहता हूं कि एक चीज होता है दैट्स कॉल्ड टारगेट टारगेट भी आपके एंकर टैग्स में ये होता है एक मिनट मैं इन बच्चों को थोड़ा सा बताऊंगा पहले चुपचाप बैठो ओ जीनत आप लोगों ने क्यों शोर मचाया मेरा क्लास है यहाँ पे गो टू दैट रूम मुझे क्या पता वो क्या करूं मुझे क्या पता ओके ओके طلعت سكيون اللي جاي من سيت ها أتصندر يمش لاقي بايتي من لاغني كراكنات أتصندر بيوت بثر ओके अब मैं क्या कह रहा हूँ काम की मेरे पास एक चीज आता है दैट्स कॉल्ड टारगेट टारगेट हो गया कि भाई आपने किस चीज को सिलेक्ट किया ठीक है यानी कि फॉर एग्जाम्पल एंकर टैग में भी हमारे पास टारगेट आता है कि आपने कौन सा चीज को सिलेक्ट किया मैं चाहता हूं कि ये पेज एक यहाँ पे थोड़ी सी मैं एनिमेशन करें इस टारगेट के ऊपर एज एन यूज केस ऑफ दिस टारगेट कि मेरे पास एक यहाँ पे एक लिंक होगी इसको क्लिक करने से मुझे यहां से आना चाहिए एक बॉक्स और वो यहां पे आना चाहिए उसका नाम है मैजिक बॉक्स ठीक है आई हैव गॉट अ मैजिक बॉक्स एंड दैट मैजिक बॉक्स शुड कम फ्रॉम हियर टू हियर और यहाँ पे एक क्रॉस बटन होगा एंड आई क्लिक द क्रॉस it should go here and hide itself and disappear right so when I click this link it should come slowly and grow here slowly grow and come here and expand it here right and there is a cross button I click across it should slowly go there and disappear and shrink and disappear right this is our this we want to do this animation and understanding what is target right okay where is my VS Code now let me just close all this and command / and what I do now here is I got some divs here for example I got the firstly the div the upper link in which I will create I will call it div.box1 okay so it creates a box 1 where I got an anchor tag and which is where is it going I will tell you right now I'm not making it move anywhere but it is saying show magic box it shows show magic box ठीक है ना so when I see it in my browser it shows this is the link which says show magic box right now this is my div I got another div okay maybe I got another div dot box2 I got a box2 here as an class as box2 we know that we got another div in this div I have one maybe I will say it I will use an ID for this I will use an ID for this as a magic box I could have created a class but say magic box magic box this is my ID for this div and in this div I got an anchor tag okay which is not going anywhere and which is having a cross in it as a because after pressing this cross it should move because it goes to the root so it's quite obvious that it will go to the root because I have sent a hash pound sign there and now I have here some maybe p tag or something which is showing the text right the text which will show me is a p tag okay like I say p tag and I say magic box MAGICBOX I got this magic box here so right now let me minimize this guy it's coming in between okay I got the cross this cross in the magic box is the second div and this is the link right okay now I got what I got firstly the div with the class box1 and then I got one anchor tag and this should lead to my this ID this div so that means I have to write here the magic box okay I have to get the target as the magic box magic
magic box. I'm getting my href to go to this div. So that means when I click this magic box, it will go to this div. It's actually a div is there, so it will go to that. It won't show us because it is there only. Now, and this div is having the ID magic box for this guy, so that I can link it, so it can go this, that. So this is where the target comes in. So when I click this show magic box, the target is this guy. It is the target, so it becomes the target. So a pseudo class target gets created for this div. That is the point to explain, right? Now I have, so when you click this link, it will select this, it will go to this magic box, but when you click cross, it will go to the root, and it has a magic box inside. Before doing this thing, I will show you one more thing. I will firstly style it up. Let me style this guy, which is called as magic box, hash magic box. Let us have it some like height, width, height, something, and all that, left, right, 0 and all. But I want to show you one more thing here. Let us make it right now. I may make it top some 30% and left 30%. Okay, but I want to show, before I will do the animation, I want to show you something. Top 30%, left 30%. Okay, and I make it width and height. Say height, HIGHT, height of say 50 pixels, and width of say 50 pixels, 50 by 50. I'm making it. I will not make it like that, but I'm just want to show something. And background color, I'm going to background color as aqua to see it somewhere. Okay, this is my and its position should be fixed so that it will go on top of everything. So I say position is fixed. I'm not explaining what is fixed because positions will deal later on. Now it's getting there. Positions will deal later on. Okay, but as you could see here, my box is smaller, right? My box is smaller, and this box is say this div box is smaller, and the text magic box, what is happening to it? What is it called? Somebody tell me. What is happening to the magic box? It's going out of the box. It's going out of the box. What do you call it? When you have a tank and you fill in with the water, and the water is going over it, outside the tank, what do you call it? Overflow. So if I say here, this is what I want to show right now here. If I say here overflow hidden, what will happen? The box part, which was the something which was going out of this box, is hidden. Understood now? What is overflow? Hidden? Yes, sir. Right? So this is the point. Now what I do is here, I want top to be 0. I want top to be 0 and left also to be 0. Okay, इसका टॉप और इसका लेफ्ट मैं 0 पे ले रहा हूँ. इसकी हाइट और विड्थ भी मुझे कुछ नहीं चाहिए. इसकी हाइट एंड विड्थ भी, क्योंकि मुझे इसको ग्रो कराना है ना, तो मैं इसकी हाइट भी 0 लूंगा और इसकी विड्थ भी 0 लूंगा. ठीक है, अब आप देखें इसमें इसकी हाइट भी 0, विड्थ जब कुछ है नहीं तो ओवरफ्लो भी हिडन है. ओवरफ्लो तो इसका तो अब कुछ भी नहीं है ना. अब ये छोटा था ना पहले. अब इसको अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन नहीं करूंगा तो डेफिनेटली इसका वो जो टेक्स्ट है ना वो बाहर आके आ गया. और क्रॉस और मैजिक बॉक्स मैंने इसका 0 लेफ्ट 0 टॉप किया ना, हालांकि इसकी जो खुद की जो डिव है खुद वो कुछ भी नहीं है, वो 0 है. ठीक है ना, उसका हाइट भी 0, उसका विड्थ भी 0, लेकिन उसका जो ये क्रॉस बटन था और ये मैजिक बॉक्स है अब उस डिव से बाहर आके दिख रहा है. ठीक है, इसलिए मुझे नहीं दिखाना है. तो इसलिए मैं क्या कहूंगा उसको कि ओवरफ्लो आप क्या कर लो, इसका हिडन हो गया, खत्म. लेकिन जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे वो वाला बंदा आना चाहिए. ये तो जा रहा है उसके पास, ये तो उसके पास जा रहा है, क्योंकि जब मैंने इसके क्लिक किया तो जा रहा है, क्योंकि इसका लिंक में वही है ना. क्योंकि इसके लिंक में जब मैंने इसको यहां पे लिंक दी है, शो मैजिक बॉक्स में क्लिक कर रहा हूं तो मैजिक बॉक्स पे जा रहा है. लेकिन मैजिक बॉक्स जो मेरा है वो है, लेकिन उसकी तो ना हाइट है कुछ, ना विड्थ है कुछ, तो वो दिख नहीं रहा हमें. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जब वो टारगेट हो, जब वो क्या हो, टारगेट. कौन टारगेट हो? मैजिक बॉक्स. और लेकिन जब आपने इसको क्लिक किया उस बंदे को, उसने उसको टारगेट बनाया, क्योंकि उसकी लिंक में यही है, मैजिक बॉक्स ही है.
तो अब मैं कह रहा हूं जब मैजिक बॉक्स मेरा है ना, जो मैजिक बॉक्स है मेरा, ठीक है ना, मैजिक बॉक्स, जब बॉक्स है ना, जब वो टारगेट है, क्या है सूडो क्लास टारगेट जब इसका होगा, ठीक है, उस वक्त आप क्या कर लेना, क्या करेंगे बोलो, यू शुड बी टेलिंग मी नाउ। ओवरफ्लो पहले नहीं हाइट और ओवरफ्लो मुझे हिडन नहीं रखना, उसके साथ नहीं करना, उसको लाना है बीच में, है ना। तो इसको टॉप देना पहले है तो उसकी हाइट एंड विड्थ भी आप देते हो ना कुछ, इसकी हाइट विड्थ, जी। क्योंकि इसकी हाइट 0 है ना, दिख नहीं रहा कुछ, हम्म, 30% हाइट रख लो, जो भी आपकी मर्जी है, विड्थ भी 30% रख लो, जो भी आप रखना चाह रहे हो, जितना बड़ा आप चाहते हो। अच्छा, उसका लेफ्ट, इसको 25% लेफ्ट कर दो, ठीक है, 25% लेफ्ट कर दो, और मैं सेंटर नहीं करना चाहता क्योंकि ट्रांसफॉर्म वगैरह करना पड़ेगा, आई डोंट वांट दैट, जस्ट मेक इट सिंपल, क्योंकि मेरा टारगेट सिखाना है बस। यहाँ पे लेफ्ट 25% कर दो, राइट इसका टॉप भी 25% कर दो, ठीक हो गया। यानी कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे, हो नहीं रहा, कुछ कुछ गड़बड़ किया हमने, व्हाट वी हैड डन समथिंग रॉन्ग। सो मैं कह रहा हूँ जब मैजिक बॉक्स का टारगेट होगा तो हाइट इसका ये है, इंडेक्स में आपने बॉक्स का भी शायद कैपिटल लिखा है, कहाँ पे, इंडेक्स href मैजिक हाँ यहाँ बॉक्स, पे बॉक्स बी कैपिटल, सर ऊपर वाला वहां पे, अब दोनों बॉक्स से रखेंगे ना कैपिटल ही, सर वापस बोलो। अच्छा ये स्मॉल ही रखना था दोनों से, यहाँ पर भी हमारे पास ही है बॉक्स, अच्छा ठीक है। तो जब आपने क्लिक किया तो बॉक्स तो आ गया, ठीक है, पहले रिफ्रेश करेंगे, अच्छा इसको क्रॉस पे करेंगे तो वो रूट पे चला जाएगा ना, वो रूट पे चला गया, वो रूट पे जो ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मैजिक बॉक्स जो है उसका टारगेट सूडो एलिमेंट आ गया, पहले नहीं था, पहले नहीं था, नहीं। तो इसलिए जब पहले नहीं था तो ये सीएसएस चला नहीं, ये वाला सीएसएस चला नहीं, क्योंकि पहले था ही नहीं ये क्लास टारगेट। वो टारगेट तब बना जब आपने इसको क्लिक किया, जब आपने शो मैजिक बॉक्स को क्लिक किया तो उसमें मैजिक बॉक्स इसके एचएफ में गया, यानी कि टारगेट में गया, तो टारगेट इसका सेट हो गया, किसका टारगेट सेट हो गया, जो मैजिक बॉक्स है। तो उस सूरत में मैं कह रहा हूं कि भाई साहब 30% आप कर लेना, उसका हाइट उसकी विड्थ 30% कर लेना, और लेफ्ट 25% कर लेना, टॉप 25% कर लेना, यानी कि हो क्या रहा है, जब मैंने क्लिक किया इसको मैं जब क्लिक कर रहा हूं, जो मैजिक बॉक्स है उसकी हाइट और विड्थ सेट हो जाती है, और इसका टॉप जो यहां से यहां तक है ना। हमारा वो कहाँ गया यासिर भाई का, वो जूम में एक चीज था ना उसमें आप लिख सकते थे, वही चीज उसमें अच्छी थी, स्क्रीन ब्रश। सो यहाँ पे इसका जो ये टॉप है ये हमने 25% कर दिया, और इसका जो लेफ्ट है यहाँ से यहाँ वो इसलिए यहाँ पे आ गया क्योंकि मैंने लेफ्ट 25% किया और टॉप 25% किया, और इसकी हाइट एंड इसकी विड्थ सेट की। लेकिन था कहाँ पे, ये बटन यहाँ पे था, ये जो ये बॉक्स है ना डिव, ये यहाँ पे था विदाउट एनी हाइट एंड दिस, और जब मैंने इसको इस पे क्लिक किया ये एकदम से फ्रॉम 0 टू दिस, इसकी विड्थ और इसकी हाइट इतनी हो गई, और इसका टॉप और इसका लेफ्ट फ्रॉम 0 0, जो मेरा टॉप एंड लेफ्ट था ना 0 एंड राइट टॉप था 0, क्योंकि मैंने इसका टॉप 0 लेफ्ट 0 किया था, तो ये यहाँ पे था, है ना, बिल्कुल ब्राउजर के लास्ट में था, ये वहां से अचानक यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं इसमें टाइम लगे, यहाँ आने में टाइम लगे, और जो ये 0 से बन गया टू द 30% इसकी हाइट एंड विड्थ, 30% हाइट एंड विड्थ बन गई, इसमें टाइम लगे, ये एकदम से 0 से 30% बिल्कुल फटाक से ना आए कि हमें पता ही नहीं चले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन, हालांकि मैं ट्रांजिशन बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं ट्रांजिशन इसको करूंगा यहाँ पे। सो हालांकि जो ट्रांजिशन है वो क्या चीज़ है, ट्रांजिशन कितने तरह वैसे आला हो उसका चीज़ ये क्या, स्क्रीन ब्रश हाइट था ना कभी, अरे यार हाइट, अच्छा वो हो गया हाइट, पता नहीं कैसे। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप ट्रांजिशन कर लो, ट्रांजिशन आप ऑल कर लो, वो की होता है ऑल शॉल, वो मैं कभी बताऊंगा आपको फुर्सत में, 3rd सेकंड, एंड इसको क्या करेंगे, और ईज इन एंड आउट, जब ट्रांजिशंस पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। यानी कि अब क्या हो रहा है कि पहले क्लिक कीजिए, खत्म हो जाएगा, रूट पे जा रहा है, अब ये बिल्कुल हल्के से जा रहा है ना, तो ये पहले भी हो रहा था ऐसे ही, मगर हमें टाइम नहीं लगा, अब मैंने कहा 3 सेकंड में ये काम कर दो, अब ये थोड़ी एनिमेशन लग रही है, ये ग्रो हो रहा है, वहां जा रहा है, और उसका जो हिडन, जो आपका हिडन है ना, वो जो मैजिक बॉक्स है, आप देखो मैजिक बॉक्स जो है जब तक इसकी साइज है तक रहेगा, जब तक इसका साइज घटेगा इस मैजिक बॉक्स से छोटा, तो जितना बाहर है ओवरफ्लो है वो हाइड होगा। अब देखना बॉक्स के ऊपर
बस जितना इसका जो बॉक्स जो जितना चीज टेक्स्ट बाहर आ रहा है वो हाइड भी हो रहा है। ठीक हो गया, समझ आ रही है? एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन इन इट? तो इस तरीके से हमने इसका मार्जिन भी कर दिया। हमने क्या किया, उसका ये कौन सा ये था, टारगेट। इसी तरीके से हमारे पास होता है चक्र भी हमने कर दिया ना। एक और चीज दैट्स कॉल्ड nth ऑफ टाइप। nth ऑफ टाइप के लिए हम करेंगे यहाँ पे काम, हम ul टैग लगाएंगे अनऑर्डर लिस्ट और ये है, और li डॉट लिस्ट इंटू 4 कर दो। यानी कि आपको li टैग बनेंगे जिसका नाम क्लास लिस्ट है, और फर्ज कीजिए बुक्स है, ये जावा है, ये जावा स्क्रिप्ट है बुक, ठीक है ना, और ये है आपका CPP, और ये है आपका एंड्रॉयड। मान लीजिए बुक्स है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक nth ऑफ टाइप इस्तेमाल करूं। वो कैसे मैं करूंगा, आई विल कॉल इट, जो li है मेरा, ठीक है ना, इनफैक्ट आप li कहो या आप डॉट लिस्ट कहो, क्योंकि इसका मैंने क्लास नेम डॉट लिस्ट दे दिया ना। तो li जो मेरा है उसका सूडो क्लास, ठीक है, जिसका मैंने क्या कहा था, nth ऑफ लिस्ट। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप कर लो फिलहाल। nth ऑफ टाइप में हमें बोलना है कौन सा, मतलब फॉर एग्जांपल 2, या मैं कहूंगा इवन, सीधे इवन, EVEN, इवन जो है उसका ना आप बैकग्राउंड कलर देना, कुछ बैकग्राउंड कलर आप दे दो उसका एक्वा। अब होगा क्या कि जो लिस्ट है उसमें जो इवन बंदे हैं उनका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड nth ऑफ टाइप। अगर मैंने यहाँ कहा फॉर एग्जांपल 2, वो भी इवन ही हो गया, नहीं इसमें हो गया 2, जो सेकंड वाला उसको होगा सेकंड, खाली सेकंड को। अगर मैं कहूंगा 2n, दैट मीन्स 2n मीन्स जो भी n है आपके उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओ, यानी कि इवन जो भी इवन है वो बनेंगे। अगर मैं 3n कहूंगा तो तीसरा, सो 2n क्या होता है असल में, 2n ऐसा होता है कि पहला किया दूसरा किया, हमने किया ना, हो गया 2, उसके बाद ही फिर से शुरू कर गया 1 and 2, ठीक है, सो 2n। इसी तरीके से अगर हमने कहा 3n, तो ये क्या करेगा, तो 1 2 3 पहले तीसरे वाले को देगा, तीसरा वाला पे स्टाइल करेगा अप्लाई, फिर शुरू करेगा यहां से 1 2, अगर और भी होंगे फिर छठे वाले को करेगा एंड सो ऑन। अगर हमने कहा 1n तो क्या करेगा बताओ, इसमें अगर 1n किया तो क्या होगा, सबको। एब्सोल्युटली, क्योंकि 1 इसने 1 किया उसके बाद फिर से 1 करेगा, फिर से 1 करेगा, तो ये सबको ही करेगा। सो इट कुड हैव एनी वैल्यू, दिस इज कॉल्ड nth ऑफ टाइप। ठीक हो गया, हाँ जी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास थोकुसनाज्म, इस तरह से हमारे पास है अब व्हाट इज कॉल्ड एज द सूडो एलिमेंट्स। सूडो क्लास में किसी को क्वेश्चंस है, एनीवन यू हैविंग क्वेश्चंस प्लीज आस्क। हाँ जी, Can you explain this nth of type again? nth ऑफ टाइप में क्या होता है कि आपने पहले एलिमेंट देखा, जो आपका एलिमेंट है, ठीक है, उसमें आप कह रहे हो कि आपका मतलब कलर के आपको ये स्टाइल किस पे लगाना है, यानी कि आपका nth ऑफ टाइप में हम क्या कहते हैं कि इसका कौन सा वर्जन आपके, मतलब अगर li है ये 10-15 है आपके पास, 20 है 40 है li जितने भी है, ठीक है, उसमें से किस पे आप एक्ट करोगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे li हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। nth ऑफ टाइप आपको बोलता है कि nth मींस हाउ मेनीथ, जैसे आप स्टूडेंट्स मेरे पास मर्ज स्टैक वाले, मैं कहता हूं अब आ गया मर्ज स्टैक वाले बंदे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे स्टाइल लगाना, मुझे कुछ चीज करनी है उन पे किसी प्रॉपर्टी के बिना पे, फॉर एग्जांपल जिसने फी नहीं भरा अभी तक, ठीक है, अब मैं किसके ऊपर ये अप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर मैंने नंबर के हिसाब से किया कि नंबर 1 को छोड़ के नहीं 2 को, 3 को नहीं 4 को, 4 को नहीं 5 को, ठीक है, तो पहला काम है एलिमेंट और इस टाइप का कौन सा किस पे, अगर आपके पास 10 है 15 है 20 है उसमें किस पे, ठीक है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ठीक है, एंड इट विल रिपीट, इट विल आल्सो रिपीट, ठीक है ना। अगर आपने कहा 2n, क्योंकि n जब आप कहते हैं, अगर आप खाली 2 कह रहे हो तो फिर ये सिर्फ 2 पे एक्ट होगा, अगर आप खाली 1 कह रहे हो तो फिर मैं कह रहा हूं बस एक ही पर पहले वाले पे अप्लाई हो जाए। सो दिस व्हाटएवर स्टाइल आई एम डूइंग, ठीक है ना। अगर मैं कहूंगा n साथ में लगा के, सो इट मींस रिपीटिशन,
Now it means loops. It means not loop, repetition. That 2n means एक काम करो, पहले जो पहला और दूसरा दूसरे पे लगाओ, फिर चलते जाओ इस तरह 1 2, फिर दूसरे पे फिर से लगाओ, फिर 1 2, फिर दूसरे पे फिर से लगाओ, एंड सो ऑन. इस तरह अगर मैं कहूंगा 4n, तो व्हाट विल हैपन टू द 4n? क्या होगा इसको? 4n पहले 4 को लगेगा, फिर पहले उधर से 4 को फिर नहीं से 4। लगेगा, पहले 4 को नहीं लगेगा, चौथे को लगेगा, क्योंकि ये काउंट करेगा 1 2 3 4 को, हो गया ये 4n. n मींस एनी मेनी टाइम्स दिस थिंग. 4 यानी कि चौथे पे लगेगा, लेकिन फिर n टाइम्स, फिर से करेगा काउंट 1 2. अगर फर्ज कीजिए ना यहाँ पे 12 थे, फिर 1 2 3 4, फिर 4 पे फिर से लगेगा. ओके ओके, ठीक है. अगर आपके पास यहाँ पे और भी होंगे तो फिर मतलब मल्टीपल टाइम्स हो गए, n टाइम्स हो गए, यानी कि ये रुकेगा नहीं कभी. ओके, अच्छा जी, इतना काफी है. इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं. जस्ट गो टू द MDN एंड ट्राई योर हैंड्स ऑन देयर. ओके, अब हमारे पास है इसमें व्हाट इज कॉल्ड एज सूडो एलिमेंट्स. सूडो एलिमेंट्स में अब क्लास की बात नहीं हो रही, अब एलिमेंट की ही बात हो रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी मेरे पास कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है. फर्ज कीजिए मैं इसको पहले सारे को बंद ही कर लेता हूँ, कमांड दिस थिंग, और यहाँ पे मेरे पास एक h1 टैग है. ओके, कमांड Z पैराग्राफ टैग है, और h1 ये वाला खोलेंगे हम. ये h1 हमारा है ना, कमांड Z. इस चीज को मैं कट करूंगा एंड आई विल पुट इट आफ्टर दिस कमांड V. तो यानी कि h1 मेरे पास है. अब पैराग्राफ टैग एक है मेरे पास, और जो पैराग्राफ टैग है ना, कमांड कंट्रोल दिस थिंग, और ये जो पैराग्राफ में लोरम है मेरे पास इनटू फॉरवर्ड, एक बड़ा सा टेक्स्ट आ गया. अब तो ये वाला चीज हमारे पास आ गया, सूडो क्लास एंड लर्निंग सूडो क्लास एंड लोरम. मैं चाहता हूं कि जो ये L है ना, ऑलरेडी एलिमेंट मेरे पास है, ऑलरेडी कंटेंट मेरे पास है. मैं चाहता हूं जो L है जिसे हम कहते हैं ड्रॉप कैप, ये बड़ा आ जाए. L क्या आ जाए, इसका यूज केस फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा आ जाए, इसका कलर डिफरेंट हो और ये कुछ डिफरेंट लगे, जैसे होता है ना फर्स्ट लेटर. तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, पहले मैं यहाँ पे कमांड A करूंगा सारे को, एंड कंट्रोल / बंद कर लेंगे इसको, कमांड / एक्चुअली. ओके, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो बहुत बड़ा हो जाए. तो मैं कह रहा हूं जो P टैग है ना मेरा, उसका जो अब डबल आप लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, अब आप डबल लगा रहे हो, कोलन. सिंगल कोलन का मतलब होता है सूडो क्लास, एंड डबल कोलन का मतलब क्या होता है, सूडो एलिमेंट. मैं कहता हूं जो फर्स्ट लेटर है, जो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, ठीक है, उसके ऊपर आपको करना है काम. उसका मैं क्या करूंगा भाई, फॉन्ट साइज ना उसका बड़ा कर दो यार, उसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर दो, या बेटर है कि 3M कर दो, और उसका फॉन्ट उसका कलर जो है ना वो चेंज कर दो, कलर उसका रेड बना दो फॉर एग्जांपल, और मे बी हॉट पिंक कर दो. और क्या करना चाहते हैं, उसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा चेंज कर दो, फॉन्ट वेट है ना उसका एक चीज करो, बोल्ड कर दो, ठीक है, ये बोल्ड में आ जाएगा एंड सो ऑन. और उसको जो भी मर्जी आप कर सकते हो. यानी कि अब मैं जब मैं देखूंगा जो L है ये टोटली डिफरेंट दिख रहा है, इट लुक्स नाइस नाउ. अक्सर होता है ना ऐसे. तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट. क्या हो गया, बात में आई. इसी तरीके से आपका एक सूडो एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं, अगर मैं यही काम करता इसके ऊपर, किसके ऊपर, मैं फर्स्ट लेटर नहीं लिखता, ऐसे लाइक दिस, and I say shift option and down arrow, copy paste it and command and / to this is मैं first line कहता. अब ये वाली चीज आपकी फर्स्ट लाइन पे अप्लाई होगी, ठीक है. ये आपका हो गया सूडो, ये सूडो एलिमेंट एक और है, ठीक है. इसी तरीके से आपके पास सिलेक्शन है, ये फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन है, बिफोर आफ्टर है. तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट किया, आपने जो P टैग है उसकी अगर आपने सिलेक्शन की, उस सिलेक्शन के बिना पे जो उसका, जैसे आप ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, ये ना ये चीज जब ना आप ऐसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना, आपका ग्रे आ रहा है पीछे से एंड ऑल दैट. मैं चाहता हूँ कि ना जी ना, जब आप सिलेक्शन करोगे तो उस वक्त थोड़ा चेंज होना चाहिए, जो बैकग्राउंड कलर मेरा है, जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो डिफरेंट आ जाए.
फर्ज कीजिए वो येलो आ जाए, चलो वो येलो से में दिखेगा, बैकग्राउंड कलर येलो आ जाए और उसका कलर, टेक्स्ट का कलर जो है ना वो ब्लैक था तो वाइट कर दूंगा मैं, वाइट आ जाए, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन जब होगा। अब जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, इफ आई कैन सिलेक्ट इट, नाउ यू सी इट्स गेटिंग येलो एंड टेक्स्ट इज बिकमिंग वाइट। अभी दिख कुछ नहीं रहा तो अच्छा नहीं था ये, जैसे यहाँ पे दिखेगा अच्छे से कि मैंने जब सिलेक्शन अब की, अब सिलेक्शन का ये जो बोलते हैं बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो गया। अब इसको, ये सूडो क्लास नहीं, ये सूडो एलिमेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी चीज वहां थी और इसको आपने वो कर दिया और ये एलिमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हो ना कि क्लास के ऊपर। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट सूडो एलिमेंट। एक और चीज हमारे पास होती थी, व्हाट इज दैट कॉल्ड, मैं भूल गया। एक सिलेक्शन हो गया, मैंने क्या किया सिलेक्शन, हाँ बिफोर आफ्टर इंपॉर्टेंट है, बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल H1 टैग मेरे पास है, उसके ऊपर बिफोर एंड आफ्टर हम ऐड कर सकते हैं। जो हमारा H1 टैग है ना यहाँ पे, H1 जो हमारा लगा यहाँ पे, ये H1 है, ये लर्निंग सूडो क्लासेस के बिफोर एंड आफ्टर में लगाना चाहता हूँ, यानी कि वो ऑलरेडी था वहां पे, लेकिन जो H1 टैग है, मैं कह रहा हूं कि H1 टैग मेरा है। व्हाट इज बिफोर एंड आफ्टर, कि आपने इंसर्ट, बिफोर आफ्टर में क्या करेंगे आप, कंटेंट को आप इंसर्ट करोगे, ऐड कंटेंट, यू कैन से लाइक दिस, व्हाट इज दिस थिंग, आर यू गाइस विद मी और यू आर स्लीपिंग? Yes, sir. Sleeping? Is the yes sir No, for sir. sleeping? No, sir. No sir for not sleeping? No. अरे यार ये कहाँ गया अब, ये वन नोट को क्या हो गया, एक सेकंड में नीचे करूंगा, पहले वन नोट निकले। हाँ, जो आपका, मैंने क्या बोला, किसकी बात हो रही है, बिफोर Before and before after. और दोनों को क्या लगेगा यहाँ से, डबल कोलन्स, क्योंकि क्यों क्यों डबल कोलन लगेगा, बिकॉज दे आर सूडो, दे आर सूडो एलिमेंट्स, राइट। तो ये दोनों जो है ना, ये वर्चुअल कंटेंट, ये कंटेंट या जिसको हम बोलेंगे वर्चुअल कंटेंट, बेसिकली वर्चुअल कंटेंट को लाएंगे, बिफोर आफ्टर, बिफोर बिफोर लाएगा, आफ्टर बाद में लाएगा, किसी एलिमेंट जो ऑलरेडी हमारे पास एलिमेंट होगा उसके बिफोर या उसके आफ्टर कुछ कंटेंट लाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू पुट अप ओनली द कंटेंट, यहाँ पे होगा सिर्फ ये टेक्स्ट, इट कुड बी इमेज ऑल्सो, इट कुड बी लोगो, इट कुड बी आइकॉन्स, इट कैन स्टफ आइकॉन्स, ठीक है ना, जो मैं असाइनमेंट भी रखूंगा आज आपको इंशाल्लाह, आई विल कीप सम असाइनमेंट्स। सो फिलहाल मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई साहब जो H1 टैग है मेरे पास है ना, उसका B4, ठीक है, H1 टैग के B4 में मैं कह रहा हूँ, किसमें, एक होता है आफ्टर, एक होता है बिफोर, बस में आई। तो क्या करना चाहिए उसके बिफोर में, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंटेंट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, अगर आप फॉर एग्जांपल आइकन इमेज लगाना चाहते हो तब भी आपको कंटेंट लिखना ही लिखना है। मतलब फर्ज कीजिए मुझे इसमें आइकन लगाना है तो मैं इमेज टैग लगा के आइकन लगाऊंगा, जो आप असाइनमेंट में रखूंगा वो आप करोगे, अभी बताऊंगा मैं क्या करना है। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि आपको कंटेंट लिखना ही लिखना है, चाहे आप आइकन ही लगाना क्यों नहीं चाहते हो, कंटेंट फिर भी लगाना, इसको छोड़ देना और इमेज अपनी लगा देना, जो मैं असाइनमेंट रखूंगा, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। तो लेकिन मैं फिलहाल कर रहा हूँ कंटेंट में मैं इसको B4 लगा दूंगा, हो गया ठीक। और इसके और भी चीजें आप कर सकते हो, जैसे फॉन्ट साइज आप चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट साइज को डबल M कर दो, ओके, उसका कलर चेंज कर दो, मे बी कलर उसका रेड कर दो, एंड वट एवर यू वांट टू डू, फॉन्ट वेट बड़ा कर दो, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दो एंड ऑल दैट। अगर मैं इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वो कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि स्मॉल लिखा है यहाँ पे तो वो कर दो, और इसका फॉन्ट वेट जो है ना वो थोड़ा मोटा कर दो, बोल्ड कर दो, एंड सो ऑन। So if I go here and now you see the before and now you see the B here is a capital because I said capitalize it. Capitalize का मतलब होता है कि पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। एक होता है अपर केस, अपर केस में क्या होता है वो सारा ही कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि मैंने B4 आगे स्मॉल b लिखा तो यहाँ पे कैपिटल B आ गया, रेड में आ गया, लंबा आ गया, और इसने ये एलिमेंट ऑलरेडी था लेकिन ये इसने इसमें स्टफ कर दिया, ठीक है ना। अब आफ्टर क्या होगा, आफ्टर बिल्कुल यही होगा ना, वो कब लगाएगा, आफ्टर। मे बी आई विल पुट अप हियर द आफ्टर, जो टेक्स्ट लगाना चाहते हो आप यहां से, ये जरूरी नहीं कि आफ्टर ही लगा, आप कुछ भी टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो वो आफ्टर में लगेगा,
जो अगर आपने कहा आफ्टर तो इस H1 टैग के आफ्टर में लगेगा, अगर आपने कहा बिफोर कोई चीज तो वो इसके बिफोर में लगेगा. नाउ I will give you the couple of assignments and that's all for today. And the assignments are like this. ये जो इसके यूज केसेस हम कहेंगे कि आपको क्या करना है काम, बिफोर कोई चीज है यहाँ पे जो भी आपकी मर्जी है, div है, H1 है, पैराग्राफ है, क्या है, आपके उसके बिफोर आइकन लगाना है और उसके आफ्टर भी आपको कोई आइकन या लोगो या कुछ लगाना है, पिक्चर टैग, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1. असाइनमेंट नंबर 2, आपका जो LI टैग होता है ना, जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद LI टैग्स है, LI, उसके बिफोर में होते हैं बुलेट्स. ठीक है, अगर ना अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अगर ऑर्डर तो उसे 1 2 होगा, फिर अनऑर्डर में क्या होते हैं, बुलेट्स. इन बुलेट्स की जगह आपको आइकन लगाना है, मतलब फायर आइकन्स. आपको फायर आइकन डाउनलोड करना है, फायर आइकन फायर जैसा होना चाहिए ना, आग जैसा आइकन, और इन बुलेट्स की जगह फायर लगना चाहिए, वो फायर आइकन्स आने चाहिए यूजिंग द बिफोर हियर, दिस सूडो एलिमेंट बिफोर. ठीक है जी, समझ में आया क्या करना है असाइनमेंट. एक आपका H1 टैग, जैसे H1 टैग है उसके आगे पीछे आइकन्स लगाने हैं या लोगो लगाना है, आपकी मर्जी है, या तो आइकन्स लगाओ या तो आइकन लगाओ बिफोर से, और आफ्टर से आप आइकन या लोगो लगाओ. ठीक है, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका जो ये चीज है जो ना उसकी बुलेट्स हैं, इन बुलेट्स को चेंज करके फायर आइकन लगाओ, रेड कलर का फायर आइकन या ऑरेंज कलर का जो फायर आइकन आप डाउनलोड करेंगे वो आइकन आने चाहिए यूजिंग द बिफोर एंड आफ्टर. दैट्स द यूज केस ऑफ इट. And I think that's enough for today. What do you say, buddies? Any confusions, anything? If not, then we move on to the box model tomorrow, inshallah ta'ala, and we do some cool projects using the box model. मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा था ना, हाँ कल मैंने वो पूरा देखा था, उसमें कोलन खाली में देखा था कि उसमें सूडो क्लासेस हैं. हाँ, उसमें क्या इशू है आपको आ रहा है सर? वही जब मैं उस पर हॉवर करता हूँ ना या फोकस करते हैं, फिर वापस जाना चाहे ना वो लेबल अपनी जगह पे, दैट्स नॉट वर्किंग. बाकी में ईमेल मैंने वैसे ही सेम प्रोसीजर से ईमेल में भी किया, और वो जो नेम टैग नेम कॉलम है उसमें भी वो किया, बट फॉर पासवर्ड इट्स नॉट वर्किंग. आप एक काम करो, वो आप ग्रुप में सेंड करो, आपको उसका ना कोड जो इसका है, ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज इट. इसमें कोड में कुछ गड़बड़ होगा ना कहीं पे, तो आपको हाँ ग्रुप में सेंड करो ताकि बाकी भी उस पर काम करेंगे. ठीक है, ओके सर. फर्स्ट लेट अदर्स आल्सो वर्क, इट विल बी गुड. अच्छा जी, कोई और मसला किसी को समझ नहीं आया कुछ? स्टॉप शेयरिंग, हाइड, लेट अस सी. ना आई मीन से स्टॉप शेयरिंग और प्रेजेंटिंग. हाँ जी, नींद किसको आई? नींद किस किस को आई ये बताओ. पर मुझे एक बात बताइए, ये जो हम सीडो क्लासेस पढ़ते हैं ना, हाँ, तो दीज आर क्लासेस दैट आर नॉट प्रेजेंट, टेम्परेरी, हाँ वर्चुअल काइंड ऑफ थिंग, राइट. जो हमने nth ऑफ टाइप किया ना, ये तो nth ऑफ टाइप तो पहले ही डिटरमाइन है ना कि मतलब क्या इसके nth ऑफ टाइप कितने हैं. जैसे li तो 4 ही है, वो तो पहले ही पता है. हाउ इज इट? you're right in that sense. जो nth ऑफ टाइप है उस पे CSS लगेगा, लेकिन वो सूडो क्लास में ही है. That's a good question what you're saying. You know what he is saying? He is saying कि आपके पास क्लास नहीं है तो आप कुछ होने पे क्लास हो रहा है, जैसे हॉवर पे क्लास आ गया, ठीक है, लेकिन होते तो ये है ऑलरेडी. ठीक है, होते हैं ये ऑलरेडी ये चीजें, चाहे हम कहेंगे इसको सूडो क्लासेस बिकॉज इट वाज नॉट accessible to you as a programmer and it became accessible to you, but है आपके पास है ऑलरेडी. ठीक है, एंड जो आपका जैसे हॉवर है वो आपके पास असल में है लेकिन accessible नहीं था. ठीक है, तो कुछ सूडो क्लासेस जो आपके पास हैं वो पहले से accessible नहीं होते हैं, वो accessible होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन. लेकिन कुछ जो है वो जैसे अभी हमने ये बिफोर एंड आफ्टर कर लिया, वो तो मतलब कोई कुछ हुआ नहीं तो हमने पहले ही कर दिया ना. अब ये एक्सेसिबल आपको फिर भी है लेकिन किसी एक्शन के बिना पे नहीं, फिर भी आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, सो अब सूडो क्लासेस में कुछ क्या होता है कि आपके पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको इसमें
एक्सेस मिलनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है कि उनको में एक्सेस नहीं है, लेकिन जब वो चीज हो जाए, जैसे चक्र था, जब तक चक नहीं होगा तब तक वो एक्सेसिबल नहीं बनेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं वो एक्सेसिबल है, ठीक है, लेकिन वो असल में उसका पार्ट नहीं है, असल में उसका पार्ट नहीं है एज ए परमानेंट थिंग, it is a temporary thing. That's why we call it as a pseudo classes and pseudo elements. Okay. सुयलन चल लगे मुझ कटे जबरदस्त में बस। Anyways, hope you are getting and learning things by tomorrow we will enter into the new, because there are many things which is called a concept. You have to understand the concept. मगर आत मज तीत concept के अगर हम आछो ना इस नेरो ना कहें इसलिए कोई फिलहाल ये त्राउन, because there are tons of things. अगर तुम MDN खोलियो ना अच्छे वोत तेल ठीक है, तो अत तक वोत सो you had to work off your own something, and what we will do is we will go on to the box model by tomorrow, and then the positions and flex boxes and grids and all, ठीक है, okay, see you guys tomorrow inshallah.